Hello dear, welcome to this lecture. In this lecture, we will discuss about disinfection and sterilization. This topic is very important for medical lab technologists, medical lab professionals, medical lab scientists, medical lab technicians, phlebotomists, and also for researchers who are doing their research in molecular biology and microbiology. This topic is also very important for medical doctors and infectious control. Before start these lectures, I request you to those pupils who did not subscribe my channel, please click on subscribe and subscribe my channel, and also click on bell icon to get notification of next lecture. Now we start this lecture. First of all, in this lecture we will see the terminologies that are used for disinfection, and then we will discuss about cleaning laboratory materials, and the third one is chemical germicides. Different types of chemical germicides are available in the market that can be used in laboratory for purpose of disinfection. The first one is chlorine, sodium dichloroisocyanurate, chloramines, formaldehyde, glutaraldehyde, alcohols, and hydrogen peroxides and peracids. First of all, we will see the terminology that are used in disinfection. First one is antimicrobial. Antimicrobial is an agent that kills microorganisms or suppress their growth and multiplication. And the second one is antiseptic. Antiseptic is also a substance that inhibits the growth and development of microorganisms without necessarily killing them. Antiseptic are usually applied over our body surfaces. जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं इनको हम बॉडी सरफेस के ऊपर भी यूज कर सकते हैं. Biocide is a general term that is used to kill the microorganism for any agent that kill microorganism. Chemical germicide, a chemical or a mixture of chemicals used to kill microorganism. Decontamination, any process for moving and or killing microorganism. The same term is also used for moving or neutralizing hazards, chemicals, and radioactive material. Disinfectant is also a chemical or mixture of chemical that is used to kill the microorganism, but these chemicals or mixture of chemicals is not effective for spores, so it cannot kill the spores. Disinfectants are usually applied to inanimate surfaces or objects. जो नॉन लिविंग surfaces होती है उनके ऊपर इनको अप्लाई किया जा सकता है. और उसके अलावा जो disinfection a physical or chemical means of killing microorganism but not necessarily spores. Microbiocide a chemical or mixture of chemical that kills microorganism. The term is often used in place of biocide. Biocide and microbiocide are similar, and also chemical germicide and antimicrobial are also similar to each other. A sporicide, as the name shows, sporo means spores and side means kill. Killing of spore, a chemical or mixture of chemicals that kill the spore and also microorganism. Sterilization is a process that is effective for all types of organism and spores that kill or remove the microorganism and their spores. First of all, we will see the cleaning in laboratory, cleaning of laboratory materials. How do we clean the laboratory materials? Cleaning is the removal of dirt, organic matter, and stains. जो cleaning है ये basically क्या है कि जो stains हैं, organic matter है या जो dirt है उसको या dust जो है उसकी removal को हम cleaning बोलते हैं. क्लीनिंग के डिफरेंट मेथड्स होते हैं. हम उसको ब्रशिंग के जरिए कर सकते हैं, वैक्यूमिंग, ड्राई डस्टिंग, वॉशिंग और डैम्प मॉपिंग विद वाटर कंटेनिंग ए सोप और डिटर्जेंट. जो मॉपिंग है इसके अंदर हम जो वाटर यूज करते हैं उसके अंदर डिटर्जेंट या कोई सोप जो है वो मिक्स होता है. और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम कोई डिसइंफेक्शन या डिकंटामिनेशन करते हैं. तो उसके अंदर क्या होता है कि लाइक अगर हमारे पास कोई भी बैक्टीरियल है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और उनके ऊपर कोई डस्ट है, डस्ट की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है और जिसकी वजह से उसकी जो डिसइंफेक्शन है या स्टेरिलाइजेशन वो इतने अच्छे से नहीं होती. तो इसलिए क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसको करते वक्त जो है जो पर्सनल जो प्रोटेक्शन होती है उसको भी हमने अडॉप्ट करना होता है. जितने भी हमारे जो पर्सनल प्रोटेक्शन के जो मेजर्स हैं, लाइक अगर आप ग्लव्स हैं और आई प्रोटेक्टर है, मास्क है और एप्रोन है, उसको हमने वियर करना होता है, वोन करना है. और उसके अलावा जितने भी
उसको हमने जो इन्फेक्शन जो एजेंट होता है उसको बहुत ही केयरफुली हमने उसको डील करना होता है, और उससे क्या होता है कि जो हमारी जो डिसइंफेक्शन या स्टीरिलाइजेशन होती है वो इफेक्टिव हो जाती है। मैनी जर्मिसाइड प्रोडक्ट्स क्लेम एक्टिविटी ओनली ऑन प्री क्लीन्ड आइटम्स। प्री क्लीनिंग मस्ट बी carried out with care to avoid exposure to infectious agent. Materials chemically compatible with the germicide to be applied later must be used. It is quite common to use the same chemical germicide for pre-cleaning and disinfection. ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जो हम प्री क्लीनिंग के अंदर जो केमिकल जर्मिसाइड यूज कर रहे हैं उसको हम डिसइंफेक्शन के अंदर भी यूज करें। और सेकंड नंबर पे जो हम हमारा जो पर्पस है इस लेक्चर का वो केमिकल जर्मिसाइड था। और केमिकल जर्मिसाइड जो है इसका एक जनरल ओवरव्यू है। इसके अंदर क्या होता है कि जो डिफरेंट टाइप्स के जो केमिकल्स है, जिस तरह हमने स्टार्ट के अंदर डिस्कस भी किया, क्या अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर। अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट वी सेलेक्ट ए केमिकल जर्मिसाइड दैट इज अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। और जो केमिकल जर्मिसाइड्स होते हैं इनकी जो एक्टिविटी है वो इनहांस हो जाती है एट हाई टेम्परेचर, लेकिन हाई टेम्परेचर के ऊपर इनके एवेपोरेट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जब भी हम केमिकल जर्मिसाइड को यूज करें तो जो हमारे जो एक्सपोजर होता है जो इन्फेक्शियस एजेंट्स उससे बचने के लिए जो पार्टिकुलर जो केयर है इज नीडेड इन द यूज एंड स्टोरेज ऑफ सच केमिकल्स इन ट्रॉपिकल रीजन। ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हमने अपनी जो सेल्फ प्रोटेक्शन है उसको मेक श्योर करना होता है। Many germicide can be harmful to humans or the environment। जो केमिकल जर्मिसाइड्स होते हैं जाहिर बात उससे जो एवेपोरेट हो जाएंगे, एवेपोरेट होने एट हाई टेम्परेचर और उसकी इफेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जो एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन है वो इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो केमिकल जर्मिसाइड है इसको हमने एक रेगुलर प्रैक्टिस नहीं बनाना होता। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमने जो केमिकल जर्मिसाइड जो है उनको हमने यूज करना लेबोरेटरी के अंदर, ताकि जो इकोनॉमिकली भी कोई इफेक्ट ना पड़े और इसके अलावा जो एनवायरमेंट है उसके ऊपर भी इसका कोई इफेक्ट ना पड़े। और जो केमिकल जर्मिसाइड्स हैं इसको जो नॉर्मल प्लेसेस लाइक फ्लोर्स, वॉल्स, इक्विपमेंट एंड फर्नीचर है उनके ऊपर हम इनको अप्लाई नहीं कर सकते। और इसको यूज करते वक्त हमने ग्लव्स, एप्रॉन्स एंड आई प्रोटेक्शंस आर रिकमेंडेड व्हेन प्रिपेयरिंग डाइल्यूशंस ऑफ केमिकल जर्मिसाइड। तो हमने ये जितनी भी जो पर्सनल सेफ्टी है या सेल्फ प्रोटेक्शन है इसको हमने मेक श्योर करना है डिफरेंट तरीकों से। ग्लव्स भी पहनने हैं, एप्रॉन्स है, आई प्रोटेक्शन है, और इसके अलावा जो केमिकल जो जर्मिसाइड्स हैं इनके जो यूज है वो हमने लिमिटेड रखना है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो ये एक जनरल जो डिस्कशन थी केमिकल जर्मिसाइड्स के ऊपर। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल जर्मिसाइड्स आर अवेलेबल इन मार्केट दैट कैन बी यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर डिसइंफेक्टेंट एज a disinfectant. The first one is chlorine sodium hypochlorite. The second one is sodium dichloroisocyanurate, chloramines, formaldehyde, glutaraldehyde, alcohols, hydrogen peroxide, peracers, iodine, iodophore, chlorine dioxide, and the last one is phenolic compounds. All these chemicals will be discussed in this lecture and also in next lecture. First of all, we discuss about क्लोरीन सोडियम हाइपोक्लोराइट। जो क्लोरीन है ये एक फास्ट एक्टिंग ऑक्सीडेंट है, वाइडली यूज्ड केमिकल जर्मिसाइड है, और ये एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म के अंदर जो हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम जो डोमेस्टिक पर्पस में हम इसको यूज करते हैं वो ब्लीच है। ब्लीच जो है वो क्लोरीन जो डोमेस्टिक पर्पस के अंदर हम इसको यूज करते हैं वो ब्लीच है, सोडियम हाइपोक्लोराइट है, और हम फिर इसी की फर्दर डाइल्यूशन बनाते हैं वाटर के साथ। According to WHO, 1 gram per liter chlorine is recommended for general all purpose in the laboratory, and 5 gram per liter chlorine means 0.5% chlorine is recommended for high contaminant, biohazard spillage and large amount of organic materials. ये आपने ज़हन में रखना है। अकॉर्डिंग टू WHO 1 ग्राम पर लीटर जो क्लोरीन है वो हम क्लीन जो आइटम्स होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं, और जो 5 ग्राम पर लीटर क्लोरीन जो है वो डर्टी कंडीशन के लिए या हाई कंटेमिनेट या बायोहैजर्ड स्पिल्स हैं, और उसके अलावा जो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उसके अंदर उस केस के अंदर हम इसको यूज करते हैं। जो सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म के अंदर, ब्लीच की फॉर्म के अंदर हमें डोमेस्टिक पर्पस के अंदर जो हम यूज करते हैं वो अवेलेबल होती है। अब इट इज टू मच अमेजिंग फॉर अस दैट द ब्लीच कंटेन्स 50 ग्राम पर लीटर क्लोरीन
it is too much greater according to our requirement in the laboratory. जो लेबोरेटरी के अंदर हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 1 ग्राम और 5 ग्राम है, और जो 50 ग्राम पर लीटर ये बहुत ज्यादा है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसकी डाइल्यूशन बनाते हैं, और डाइल्यूशन इस तरह से बनाते हैं कि हमें 1 ग्राम पर लीटर और 5 ग्राम पर लीटर जो क्लोरीन है वो अटेन हो जाए। तो इसका अब जो 1 ग्राम पर लीटर क्लोरीन हम यूज करेंगे ऑल पर्पस के लिए, और हमारे पास जो मौजूद है वो 50 ग्राम पर लीटर। इट मींस कि 50 टाइम्स जो क्लोरीन है वो ग्रेटर इन ब्लीच according to our requirement. So we make 150 dilution, 1 into 50 dilution, 150 के हम डायल्यूशन बनाएंगे, और हाई कंटेमिनेंट के लिए हमें 5 ग्राम पर लीटर क्लोरीन चाहिए, और हमारे पास 50 ग्राम, इट मींस 10 टाइम ग्रेटर क्लोरीन प्रेजेंट इन ब्लीच। So we make dilution of 110 to get 5 gram per liter for high contaminant biospheres and large amount of organic materials. तो इसके हम फिर 110 की डायल्यूशन बनाएंगे। तो इस तरह से हमें जो इंडस्ट्रियल जो सोल्यूशन होता है जो ब्लीच का, उसके अंदर जो सोडियम हाइपोक्लोराइड की जो कंसंट्रेशन है वो 120 ग्राम पर लीटर होती है। इट इज टू मच हायर एज कंपेयर टू 50 ग्राम पर लीटर क्लोरीन प्रेजेंट इन ब्लीच एज वी यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस इन आवर हाउस, जो हम घरों के अंदर यूज करते हैं और या डोमेस्टिक पर्पस के अंदर हम यूज करते हैं, उसकी निस्बत ये बहुत ज्यादा है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग जो है हम डाइल्यूशन बनाते हैं। अगर 1 ग्राम पर लीटर की डाइल्यूशन बनाएंगे तो इसके अंदर 120 टाइम्स जो ग्रेटर जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड मौजूद है, तो इसलिए हम इसकी 1 into 120 की डाइल्यूशन बनाएंगे। और सेम विद 5 ग्राम पर लीटर उसकी भी हम उसी के अकॉर्डिंग डाइल्यूशन बनाएंगे। जो क्लोरीन है ये जो है एंटीसेप्टिक के तौर पे तो हम इसको यूज नहीं कर सकते, और लेकिन जो जनरल पर्पस जो डिसइंफेक्टेंट है उसके तौर पे हम यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो क्लोरीन है ये जो मेटल्स होते हैं उसके लिए क्रोसिव होते हैं, तो इसलिए हम इसको मेटल फ्री जो मटेरियल्स होता है उसकी डिकंटेमिनेशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। इन इमरजेंसी केस अगर हमारे पास कोई और कोई रिसोर्सेज ना हो, कोई पाथवे ना हो, तो उसके अंदर अगर कोई हमारे पास और कोई डिसइंफेक्टेंट अवेलेबल ना हो, तो हम जो क्लोरीन है उसको ड्रिंकिंग में जो वाटर होता है उसकी डिकंटेमिनेशन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 1 to 2 मिलीग्राम पर लीटर हम यूज करेंगे। अब इसका जो ड्रॉबैक है वो ड्रॉबैक यही है कि ये हाईली अल्कलाइन होता है और क्रोसिव टू मेटल होता है, इसलिए हम इसको मेटल के ऊपर यूज नहीं कर सकते। और इट्स एक्टिविटी इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिक मैटर। जो क्लोरीन होता है हमारे पास ब्लीच के अंदर जो अवेलेबल जो क्लोरीन है वो जो प्रोटीन्स या ऑर्गेनिक मैटर्स होता है उसके लिए ये इफेक्टिव नहीं होते, ये क्लोरीन की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं। और थर्ड नंबर पे स्टोरेज ऑफ वर्किंग सोल्यूशन। जो क्लोरीन होता है इसको कभी भी हमने ओपन कंटेनर के अंदर हाई टेम्परेचर के ऊपर स्टोर नहीं करना। उसकी रीजन क्या कि अगर हम ओपन लिड के अंदर जो है कंटेनर के अंदर हम इसको स्टोर करेंगे और टेम्परेचर हाई होगा तो ये क्लोरीन गैस की फॉर्म के अंदर एवेपोरेट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है या जो भी हमारा वर्किंग सोल्यूशन है उसकी जो इफेक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। और लास्ट वन इज क्लोरीन गैस इज हाईली टॉक्सिक। ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है, ये ह्यूमंस के लिए और पॉल्यूशन जो एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन होती है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। अब जो इसकी प्रिकॉशंस क्या है, प्रिकॉशंस ये है कि जो सॉल्यूशंस हम इसके लिए बनाएंगे, एक तो हमने पहले बात की कि ये जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं मटेरियल्स जो होते हैं उनके लिए ये इफेक्टिव नहीं है। तो अगर हमारे पास इसके अलावा कोई और डिसइंफेक्टेंट अवेलेबल ना हो तो फिर हम क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स को 5 ग्राम पर लीटर जो हाईली जो कंटेमिनेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है उसको हम ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए यूज करेंगे, फर्स्ट वन। सेकंड नंबर पे वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल का जो एक्सपोजर होता है डिसइंफेक्टेंट के साथ, अगर तो हम आफ्टर 1 वीक जो है हम इसको रिमूव करते हैं तो उसको हम जो 1 दिन के अंदर सेवरल टाइम जो है, अगर हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल हाई क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल है तो फिर हम सेवरल टाइम जो हमारा डिसइंफेक्टेंट है लाइक जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है हम उसको चेंज करेंगे अगर ऑर्गेनिक मटेरियल हाई क्वांटिटी के अंदर है। तो ब्लीच मस्ट बी स्टोर्ड एंड यूज्ड इन वेल वेंटिलेटेड एरियाज। वो मैंने आपको रीजन बता दिया है कि ये हाई टेम्परेचर के ऊपर या अगर ओपन लिड ओपन कंटेनर के अंदर अगर हम इसको स्टोर करेंगे तो उससे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी, दैट इज हाईली टॉक्सिक फॉर अस।
So we should store the bleach in well ventilated areas only. और इसके अलावा जो ब्लीच है ये हाईली अल्कलाइन होता है, इसको कभी भी हमने एसिड के साथ मिक्स नहीं करना। अगर हम इसको किसी भी एसिड के साथ मिक्स करेंगे तो इससे क्या होगा कि क्लोरीन गैस रिलीज होगी और इसकी इफेक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाएगी। Many byproducts of chlorine can be harmful to humans and environment, so that indiscriminate use of chlorine-based disinfectant, in particular bleach, should be avoided. तो इसलिए हमें इसका बेतहाशा यूज नहीं करना चाहिए, इसको हमने लिमिटेड यूज करना है, क्योंकि ये जो क्लोरीन है वो सिर्फ हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है बल्कि जो एनवायरनमेंट है उसके लिए भी ये नुकसानदेह है। तो इसलिए एनवायरमेंटल पोल्यूशन को बचाने के लिए हमने क्या करना है कि जो क्लोरीन है इसको जो है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट इसको हमने यूज करना है। तो ये तो सारा जो हमारा क्लोरीन का था और ब्लीच का था। और इसके अलावा जो सोडियम हाइपोक्लोराइट है या क्लोरीन है वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट की फॉर्म के अंदर भी मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है। ये ग्रैन्यूल्स और टैबलेट की फॉर्म के अंदर होती है। अब ये जो टैबलेट्स होती है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट की, इसके अंदर 70% क्लोरीन अवेलेबल होती है और एक टैबलेट जो होती है उसका जो वेट होता है वो 1.4 ग्राम होता है और उसके अंदर 1 ग्राम क्लोरीन मौजूद होती है। और इसमें इट मींस के अगर हम 1 ग्राम जो एक टैबलेट है जिसका वेट 1.4 ग्राम और उसके अंदर 1 ग्राम क्लोरीन मौजूद है, तो हमें जो रिक्वायरमेंट है जनरल पर्पस के लिए वो 1 ग्राम पर लीटर है। तो इट मींस के अगर हम एक टैबलेट को डिसॉल्व करें 1 लीटर वाटर के अंदर तो हम 1 ग्राम पर लीटर जो क्लोरीन वो अटेन होगी फॉर जनरल पर्पस के लिए। हाई कंटेमिनेंट कंडीशन के लिए हमें 5 ग्राम पर लीटर क्लोरीन चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो 5 टैबलेट्स जो हैं उनको मिक्स करेंगे, इसका जो टोटल वेट बन जाएगा अगर 1.4 ग्राम है, अगर हम 5 टैबलेट्स लेंगे तो इसका वेट 7 ग्राम बन जाएगा और इसके अंदर जो क्लोरीन है वो 1 ग्राम होगी। तो इस मींस के अगर हम 5 टैबलेट्स लेंगे तो इनके अंदर 5 ग्राम क्लोरीन आ जाएगी। उन 5 ग्राम क्लोरीन को जब हम 1 लीटर वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो 5 ग्राम पर लीटर क्लोरीन हमें अटेन होगी फॉर हाई कंटेमिनेंट कंडीशन के लिए। तो ये तो हमारा जो फर्स्ट वन इज क्लोरीन सोडियम हाइपोक्लोराइट जिसको हमने डिस्कस किया इन डिटेल, और इसके जो ड्रॉबैक्स एडवांटेज डिसएडवांटेज हम इसको किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं और इसकी कौन कौन सी डाइल्यूशन जो हम बनाते हैं उसको हमने इन डिटेल डिस्कस किया। नेक्स्ट है सोडियम डाइक्लोरो आइसोसाइनोरेट। जो सोडियम डाइक्लोरो आइसोसाइनोरेट इज आल्सो अवेलेबल इन पाउडर और टैबलेट फॉर्म दैट कंटेन्स 60% अवेलेबल क्लोरीन। जो हमारे पास जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड था उसके अंदर 70% क्लोरीन थी, इसके अंदर 60% क्लोरीन है। 1 tablet of sodium dichloroisocyanurate has 1.7 ग्राम वेट। उसका जो वेट होता है वो 1.7 ग्राम होता है। तो जो 1.7 ग्राम जो वेट है इसके अंदर 1 ग्राम जो है वो क्लोरीन मौजूद होती है। एक टैबलेट के अंदर 1 ग्राम जो क्लोरीन है वो मौजूद होती है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे कि अगर तो हमने 1 ग्राम पर लीटर क्लोरीन चाहिए नॉर्मल के लिए, क्लीन आइटम्स के लिए, उनको डिकंटेमिनेट करने के लिए, और 5 ग्राम पर लीटर जो क्लोरीन है वो चाहिए हमें हाई कंटेमिनेट जो हमारे पास जो चीजें हैं आइटम्स हैं उनको डिकंटेमिनेट करने के लिए। तो 1 ग्राम जो हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक टैबलेट को 1 लीटर वाटर के अंदर मिक्स करेंगे और उससे हमें 1 ग्राम पर लीटर जो क्लोरीन वो अटेन हो जाएगी। और इसी तरह 5 ग्राम पर लीटर अटेन करने के लिए हमें 5 टैबलेट जो है 1.7 ग्राम की, टोटल वेट 8.5 ग्राम पर लीटर बने 8.5 ग्राम बनेगा, उसको हम मिक्स करेंगे 1 लीटर वाटर के अंदर। तो इससे हमें 5 ग्राम पर लीटर हाई कंटेमिनेट जो सोल्यूशन है, वर्कर सोल्यूशन है, वो हम अटेन कर लेंगे। Tablets of NaDCC sodium dichloroisocyanurate generally contain the equivalent of 1.5 gram available chlorine per tablet. 1 or 4 tablet dissolved in 1 liter of वाटर। ये तो था अगर हमारे पास पाउडर की फॉर्म के अंदर हो। अगर तो हमारे पास टैबलेट की फॉर्म के अंदर हो तो इसमें क्या होता है कि अगर पाउडर की फॉर्म के अंदर हमारे पास 1.7 ग्राम NaDCC है तो उसके अंदर 1 ग्राम क्लोरीन होगी। अगर टैबलेट की फॉर्म के अंदर है तो उसके अंदर 1.5 ग्राम क्लोरीन होगी। तो अगर हम 1.5 ग्राम को 1 लीटर में मिक्स करें तो राउंड अबाउट 1 ग्राम पर लीटर क्लोरीन अटेन हो जाएगी। और इसी तरह अगर हमें 5 ग्राम चाहिए तो उसके लिए हम 4 टैबलेट जो है मिक्स करेंगे 1 लीटर वाटर के अंदर। इससे क्या होगा 5 ग्राम पर लीटर जो क्लोरीन है वो अटेन हो जाएगी।
कीप इन माइंड दैट कि अगर सोडियम डाइक्लोरोआइसोसाइनारेट जो है वो पाउडर फॉर्म के अंदर है तो उसके अंदर 1.7 ग्राम पाउडर के अंदर 1 ग्राम क्लोरीन होगी। अगर वो टैबलेट की फॉर्म के अंदर है तो उसकी एक टैबलेट के अंदर 1.5 ग्राम जो है वो क्लोरीन मौजूद होगी। और इसके अलावा NaDHC पाउडर और टैबलेट इज इजी एंड सेफ टू स्टोर, ये बहुत इजी होता है, इसको हम इजीली स्टोर कर सकते हैं। सॉलिड सोडियम डाइक्लोरोआइसोसाइनारेट कैन बी अप्लाइड ऑन स्पिल्स ऑफ ब्लड, जो ब्लड की स्पिल्स होती हैं उनके अंदर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। बायोहैजर्ड्स लिक्विड जो है उनके ऊपर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड लेफ्ट फॉर एटलीस्ट 10 मिनट बिफोर रिमूवल। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आइटम्स हैं जिसको हम डिकंटेमिनेट करना चाहते हैं उसको इसके अंदर हम डिप कर देते हैं, सॉक कर देते हैं और उसके आफ्टर 10 मिनट्स जो है हम उसको रिमूव करते हैं। फर्दर क्लीनिंग ऑफ द अफेक्टेड एरिया कैन देन टेक प्लेस, और उसके बाद फिर हम जो फर्दर क्लीनिंग है वो इससे करते हैं। थर्ड वन इज क्लोरामाइंस। Chloramines are available as powder containing about 25% available chlorine। इसके अंदर जो 25% जो है वो क्लोरीन अवेलेबल होती है और ये भी पाउडर की फॉर्म के अंदर होता है। अब इस कीप इन माइंड दैट कि सबसे पहले हमने कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को डिस्कस किया, तो उसके अंदर जो क्लोरीन थी वो 70% थी, और उसके बाद हमने हमने डिस्कस किया सोडियम हाइपोक्लोराइड को, उसके अंदर जो क्लोरीन थी वो 60% थी। अब इसके अंदर जो क्लोरीन है वो 25% होती है और ये बहुत कम है। तो अगर हमें 1 ग्राम पर लीटर अटेन करने के लिए हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी क्लोरामाइंस की चाहिए होगी। और जो क्लोरामाइंस है ये बहुत स्लोअर रेट देन हाइपोक्लोराइड्स। जो क्लोरीन इसके अंदर क्या होता है कि जो क्लोरीन गैस जो रिलीज होती है इस केस क्लोरामाइंस के केस के अंदर बहुत स्लो होता है, कि इसके अंदर बहुत स्लोली जो क्लोरीन गैस की फॉर्म के अंदर रिलीज होती है, और इसमें हमें हायर इनिशियल कंसंट्रेशन चाहिए होती है। उसकी रीजन यही होती है कि इसके अंदर जो क्लोरीन है वो 25% है एज कंपेयर टू कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एंड सोडियम डाइक्लोरोआइसोसाइनारेट required for efficiency equivalent to those of hypochlorites. On the other hand, chloramine solutions are not inactivated by organic matters। जिस तरह हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड के केस के अंदर बात किया कि उसके अंदर जो क्लोरीन होती है ब्लीच के अंदर या सोडियम हाइपोक्लोराइड के अंदर वो इफेक्टिव नहीं होती ऑर्गेनिक मैटर, इफेक्टिव होती है लेकिन जो उसकी जो इफेक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है ऑर्गेनिक मटेरियल की वजह से। तो लेकिन जो क्लोरामाइंस है ये इसके अंदर ऐसा नहीं होता, ये इफेक्टिव है अगेंस्ट ऑर्गेनिक मैटर्स और मटेरियल टू द सेम एक्सटेंट एज सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ 20 ग्राम पर लीटर आर रिकमेंडेड फॉर बोथ क्लीन एंड डर्टी कंडीशन। तो इस केस के अंदर होता है कि हम 20 ग्राम जो क्लोरामाइन लेते हैं 1 लीटर के अंदर, और ये हम दोनों कंडीशन के अंदर हम इसको यूज करते हैं। क्लोरामाइन जो सोल्यूशन है आर विजुअली ऑडर फ्री, इसकी ये स्मेललेस होता है, ऑडर फ्री होता है। Items soaked in them must be thoroughly rinsed to remove any residue of the bulking agents adding to chloramine tea, sodium toside chloramide powders। तो इसमें क्या होता है कि जब हम इसके अंदर किसी भी चीज को सोक करते हैं, मटेरियल को सोक करते हैं, तो उसके बाद उसको हमने रिंस करते हैं थॉरली के, ताकि इसके ऊपर किसी भी तरह का क्लोरामाइंस का कोई रेजिड्यू बाकी ना बचे। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है फॉर्मेल्डिहाइड। Formaldehyde is a gas that kills all microorganisms and spores at temperature about 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये गैस की फॉर्म के अंदर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल कर देती है। इट इज नॉट एक्टिव अगेंस्ट प्रियॉन्स, इट इज मार्केटेड एज द सॉलिड पॉलीमर पैराफॉर्मेल्डिहाइड, फ्लैक्स और ट्यूब्स, टैबलेट्स और एज फार्मालिन। ये डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जो मार्केट के अंदर ये अवेलेबल होती है, और इसमें जो सोल्यूशन ऑफ द गैस इन वाटर ऑफ अबाउट 370 ग्राम जो है फार्मालिन मिक्स करें 1 लीटर के अंदर। 37% जो फार्मालिन कंटेनिंग मेथानॉल 100 ml पर लीटर एज ए स्टेबलाइजर। तो अब इसमें क्या होता है कि इनको फार्मालिन प्लस मेथानॉल जो है इसको हम हीट करते हैं, और हीट करने से क्या होता है कि इसके अंदर से गैस जनरेट होती है। वो जो गैस होती है वो जो वॉल्यूम होता है वो चाहे वो बायोसेफ्टी कैबिनेट का हो सकता है, वो रूम्स की जो स्पेस होती है बायोसेफ्टी कैबिनेट की जो स्पेस होती है, ये उसको डिकंटेमिनेशन और डिसइंफेक्शन के अंदर ये जो गैस होती है वो रोल प्ले करती है, उसको डिकंटेमिनेट कर देती है, डिसइंफेक्टेंट कर देती है। और इसी तरह जो अगर फॉर्मेल्डिहाइड जो 5% फार्मालिन इन वाटर अगर हम उसको
जो लिक्विड डिसइंफेक्टेंट है उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। कीप इन माइंड दैट कि जो बायोसेफ्टी कैबिनेट्स या रूम्स जो है उसकी जो स्पेस है उसको डिकंटेमिनेट करने के लिए हम 37% जो है वो फॉर्मेलिन यूज करते हैं, और 100 ml मेथनॉल पर लीटर हम एज ए स्टेबलाइजर यूज करते हैं, और उससे जो गैस जनरेट होगी वो हमारी जो स्पेस है बायोसेफ्टी कैबिनेट और रूम्स की उनको डिकंटेमिनेट कर देती है। लेकिन जो लिक्विड इन्फेक्टेंट के लिए हम 5% फॉर्मेलिन इन वाटर जो है वो यूज करते हैं, जिससे क्या होगा उसको फिर जो गैस है फॉर्मेल्डिहाइड वो जनरेट होगी, और इससे क्या होगा जो डिसइंफेक्शन है लिक्विड की वो हो जाएगी। और जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि फॉर्मेल्डिहाइड गैस जो है ये कार्सिनोजेनिक है और डेंजरस है, इरिटेंट गैस that has a tremendous smell, and its fumes can irritate eyes and mucous membrane. Formaldehyde is relatively Formaldehyde is relatively slow acting and needs humidity level of 70%। जो फॉर्मेल्डिहाइड को एक्ट करने के लिए 70% जो है ह्यूमिडिटी लेवल चाहिए होता है। अब इसकी प्रिकॉशंस क्या है कि जब भी फॉर्मेल्डिहाइड गैस को किसी भी स्पेस के अंदर, किसी रूम्स या बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर अगर हमने इसको यूज करना है और डिकंटेमिनेशन के लिए, तो उसमें फिर हमें जो पर्सनल सेल्फ जो प्रोटेक्शन है उसको मेक श्योर करना होता है। It must therefore be stored and used in a fumed or well ventilated area, और national chemical safety regulations must be followed। तो इसके अंदर जो जितनी भी गाइडलाइंस है उसको यूज करने के लिए उनको हमने फॉलो करना होता है। तो ये सारे का सारा था कि डिसइंफेक्शन जो है उसके अंदर हमने सबसे पहले जो जनरल टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया, उसके बाद हमने क्लीनिंग ऑफ लेबोरेटरी मटेरियल्स है उनको हमने डिस्कस किया, और उसके बाद जो केमिकल जर्मिसाइड्स के अंदर सोडियम हाइपोक्लोराइड जो क्लोराइन है जो ब्लीच की फॉर्म के अंदर और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की फॉर्म के अंदर हमने उनको डिस्कस किया, और उसके बाद फिर हमने जो सोडियम डाइक्लोरो आइसोसायनेट था उसके बारे में हमने डिस्कस किया, वो टैबलेट और हमारे पास पाउडर की फॉर्म के अंदर अवेलेबल होती है, और उनके अंदर जो रिकमेंडेड है वो 1 ग्राम पर लीटर क्लोरीन है वो चाहिए हमें क्लीन या जनरल ऑल पर्पस के लिए इन लेबोरेटरी, और जो 5 ग्राम पर लीटर क्लोरीन है वो इज रिक्वायर्ड फॉर हाई कंटेमिनेट और या फिर जो बायोहैजर्ड स्पिल्स हैं, और इसके अलावा जो ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स होता है रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स उसके लिए हमें चाहिए होती है। और उसके बाद फिर हमने जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसके बारे में डिस्कस किया, और जो नेक्स्ट जो रिमेनिंग है अल्कोहल है, ग्लूटाल्डिहाइड है, और इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। All these chemical germicide will be discussed in next lecture. Thank you very much for watching this video. I am requesting to all of you who did not subscribe my channel, please click on subscribe and subscribe my channel. Thank you very much.